ઓકે. ઇન્દ્રબેન શરૂ કરો. ઇન્દ્રબેન શરૂ કરો. તું 80મી તું ગાથા display કર. હે તું આપણે PDF સુધી display કર. હા બધું કરું. અચ્છા અત્યારે પીડીએફમાં તમારે ગાથા કરું કે મેં તો ઓલું કટાઈ ગયું છે. પ્રવચન નંબર 170. હા 100 રજની કીધું કે 169 કર મને કીધું. 69 કે છે. હા એણે કીધું છે મને. ચલો તમારે પહેલાં તો ઓકે લેટ્સ સી. આ તો ગાથા છો કરીએ. હું ઓલું પીડીએફ ઓકે 169 માં તો શ્લોક છે. હા 50 નંબરનો શ્લોક. એ કે છે આપણે નથી કર્યો. આ કરી લીધો, થઈ ગયો છે. ઓકે તો હવે 170 સીધી કરવા. 80મી ગાથા. અચ્છા 80મી ગાથા કરવી છે ને. ઓકે ઓ બોય. જો કે જીવના પરિણામને અને પૂતગલના પરિણામને હા હા અન્યોન્ય હા હા બરાબર છે. પરસ્પર નિમિત્ત માત્રપણું છે, તો પણ તેમને બંનેને કરતા કર્મપણું નથી એમ હવે કહે છે. હા એ વાર હું સાંભળો તો મારે એક મિનિટ મેં 169 ચાલુ કર્યું છે ને. મીટિંગ હું એક મિનિટ આમ ગોઈંગ ટુ ગેટ આઉટ. ઓકે જરા બહાર જઈને પછી 170 શરૂ કરું છું. લીવ મીટિંગ. અચ્છા એક મિનિટ. ઓકે ઓકે ઇન્દ્રબેન શરૂ કરો. હા, જીવ ભાવ હેતુ પામી પૂતગલ કર્મ રૂપે પરિણામે, એવી રીતે પૂતગલ કર્મ નિમિત્ત જીવ પણ પરિણામે. જીવ કર્મ ગુણ કરતો નથી, નહીં જીવ ગુણ કર્મો કરે. અન્યોના નિમિત્તથી પરિણામ બે ઉતણા બને. એ કારણે આત્મા ઠરે કરતા ખરે નિજ ભાવથી, ઉદગલ કર્મ કૃત સર્વ ભાવો નો કદી કરતા નથી. આપણે ટીકા વાંચવી છે. હવે ગાથા જ વાંચું. હવે ટીકા વાંચવી છે કે શું કરું છું બોલો. હા, કે તમે ગાથાર્થ વાંચ્યું ચાલો. હા, મંજુબેન છો ને. વાંચો. હા છું. મંજુબેન, શું બોલો. હા, તમે બોલો, તમે બોલો. તમે કરવો તમે બોલો. તમે બોલો. હા હા બોલું છું, હા હું જ બોલું છું. મંજુબેન ગાથાર્થ ને ઓલું ટીકા પેલા વાંચી લઈએ. હા વાંચી લઈએ. હા ઓકે ચાલો. હા હવે પહેલા તો કે છે જો કે જીવના પરિણામને અને પૂતગલના પરિણામને અનોન્ય પરસ્પર નિમિત્ત માત્રપણું છે, તો પણ તેમને બંનેને કરતા કર્મપણું નથી એમ હવે કહે છે.
પૂતગલો જીવના પરિણામના નિમિત્તથી કર્મપણે પરિણમે છે, તેમજ જીવ પણ પૂતગલ કર્મના નિમિત્તથી પરિણમે છે. જીવ કર્મના ગુણોને કરતો નથી, તેમજ કર્મ જીવના ગુણોને કરતું નથી, પરંતુ પરસ્પર નિમિત્તથી બંનેના પરિણામ જાણો. આ કારણે આત્મા પોતાના જ ભાવથી કર્તા કહેવામાં આવે છે, પરંતુ પૂતગલ કર્મથી કરવામાં આવેલા સર્વ ભાવોનો કરતા નથી. ટીકા. જીવ પરિણામને નિમિત્ત કરીને પૂતગલો કર્મપણે પરિણમે છે, અને પૂતગલ કર્મને નિમિત્ત કરીને જીવ પણ પરિણમે છે. એમ જીવના પરિણામને અને પૂતગલના પરિણામને અન્યોન્ય હેતુપણાનો ઉલ્લેખ હોવા છતાં પણ જીવ અને પૂતગલને પરસ્પર વ્યાપ્યવ્યાપક ભાવના અભાવને લીધે જીવને પૂતગલ પરિણામો સાથે અને પૂતગલ પરિણામોને જીવ પરિણામો સાથે કર્તા કર્મપણાની અસિદ્ધિ હોઈને માત્ર નૈમિત્તિક ભાવનો નિષેધ નહીં હોવાથી અન્યોન્ય નિમિત્ત માત્ર થવાથી જ બંનેના પરિણામ થાય છે. એ કારણે અર્થાત તેથી જેમ માટી વડે ઘડો કરાય છે, તેમ પોતાના ભાવ વડે પોતાનો ભાવ કરાતો હોવાથી જીવ પોતાના ભાવનો કરતા કદાચિત છે, પરંતુ જેમ માટી વડે કપડું કરી શકાતું નથી, તેમ પોતાના ભાવ વડે પરભાવનું કરવું અશક્ય હોવાથી જીવ પૂતગલ ભાવનો કરતા તો કદી પણ નથી. એ નિશ્ચય છે. અને ભાવાર્થી વાંચી. જીવના પરિણામને અને પૂતગલના પરિણામને પરસ્પર માત્ર નૈમિત્તિકપણું છે, તો પણ પરસ્પર કર્તા કર્મપણું નથી, કર્તા કર્મ ભાવ નથી. પરના નિમિત્તથી જે પોતાના ભાવ થયા તેમનો કરતા તો જીવને અજ્ઞાન દશામાં કદાચિત કહી પણ શકાય, પરંતુ જીવ પરભાવ ન કરતા તો કદી પણ નથી. બીજું કઈ છે તે? અચ્છા. હવે ઓકે. તો અચ્છા, આ ગાથામાં ખાસ તો સમજો તું કહેવા માંગે છે? હા, એટલે કહું છું, પૂછવું. જીવ અને પૂતગલ બંનેનું કોઈ કર્તા કર્મપણું નથી. ભોગતા ભોગ્ય ભાવ, એટલે આ ત્રણેય ગાથામાં એ જીવના પરિણામને અને પૂતગલના પરિણામને એકબીજાને પરસ્પર નિમિત્ત માત્રપણું છે, તો પણ તેમને કર્તા કર્મપણું નથી. એ આ ત્રણ ગાથા છે. હા, એ તો બરાબર છે, પણ અહીંયા ખાસ તો નિમિત્ત માત્રથી બંનેના પરિણામ થાય છે. એ કારણે અર્થાત જેમ માટી વડે ઘડો કરાય છે, તેમ પોતાના ભાવ વડે પોતાનો ભાવ, તેમ પોતાના ભાવ વડે પોતાના ભાવ કરાતો હોવાથી જે પોતાના ભાવનો કરતા પોતાનો ભાવનો કરતા કદાચિત છે. એટલે ભાવ તો સ્વયં થાય છે, ભાવ તો સ્વયં થાય છે, પણ તો એનો કરતા કેવો હોય તો એ દ્રવ્યને કહી શકાય. જે દ્રવ્યનો એ ભાવ છે એનો એને કરતા કહી શકાય. એટલે ભાવ એને તમે પર્યાયમાં લઈ લીધું. પર્યાયમાં એટલે જીવની જે પર્યાય છે, જીવની પર્યાય છે એ જીવ જ કરે, જીવમાંથી જ આવે છે એમ. જીવમાંથી જ આવે છે. એટલે એનો કરતા એને કદાચિત કહેવાય, પણ પૂતગલને તો ન જ કહેવાય. હા, એ તો બરાબર છે, પણ કદાચિત કેમ કીધું? ભિન્ન દ્રવ્ય થઈ ગયા, એક જ દ્રવ્યના દ્રવ્ય પર્યાય થયા. ઓકે. એટલે ઈ જ દ્રવ્યની પર્યાય છે, પણ પર્યાય છે એટલે કદાચિત કીધું એમ? નહીં, એટલે એને કદાચિત એટલે એને કરતા કદાચિત કહેવાય એમ. પર્યાય તો દ્રવ્યની જ છે, પણ જીવને એનો કરતા, પર્યાયનો કરતા કદાચિત કહેવાય એમ. એટલે જોરથી કેમ નથી કહેતા કે જેમ કારણ કે પરિણામથી થાય છે. પરિણામ એનો સત્કારકથી થાય છે. પરમ નિશ્ચયથી તો પરિણામ એના સત્કારકથી થાય છે, પણ આપણે એને કહેવા હોય જીવના તો કદાચિત. અચ્છા, પણ
અચ્છા, એટલું જોર નથી આપતા જેટલું હા, એને તો આ કારણ અકર્તા કરવો છે ને, અકર્તા અચ્છા તરીકે. અચ્છા, હા એટલે ઈ દ્રવ્ય તરીકે જે વસ્તુ છે ત્રિકાળી શુદ્ધાત્મા છે એ અકર્તા છે, પણ હા પરિણામ તરીકે આ જે કે છે મંજુબેન એ રીતે હા કહી શકાય. અચ્છા, કહી શકાય. અચ્છા 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 પરસ્પર પરસ્પર નિમિત્ત અચ્છા, પણ આમાં સાંભળો, લખે છે પછી પછી ભાવાર્થમાં પાછું કે છે પરના નિમિત્તથી જે પોતાના ભાવ થયા તેમનો કરતા તો જીવને અજ્ઞાન દશામાં કદાચિત કહી પણ શકાય, પરંતુ એટલે જીવ અત્યારે આપણે એ જ થાય છે ને કે કર્મનો ઉદય જોઈ ને આપણે હા અજ્ઞાન દશામાં પરિણમીએ છીએ. એટલે પરને નિમિત્તથી આપણે પોતાના ભાવ કરીએ છીએ ને, હા 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 કર્મના નિમિત્તથી. આપણે એમ હા. કહીએ ને કે ભાઈ કર્મમાં ક્રોધ આવ્યો તો કે હું ક્રોધી. પણ આપણું તો ઈ જ ચાલે છે હે એના એટલે એટલે ના પાડે છે ને કે નિમિત્તથી પોતાના ભાવ કર્યા તો તું ઓકે તો અકર્તા છું ને કરતા ક્યાંથી થઈ ગયો. અચ્છા અચ્છા, ઓકે, ચાલો. ઓલરાઈટ, હવે શું વ્યાખ્યાન શરૂ કરું? ટૂંકમાં શું છે હા બધી જ ગાથાઓમાં હા કે હા દરેક દરેક પર્યાય દરેક હમ, વસ્તુ સ્વતંત્ર પોતાના જ સટકારકથી જ પરિણમે છે. કોઈને કોઈની અપેક્ષા છે નહીં. જીવને હમ, પૂતગલની કે પૂતગલને જીવની કે પર્યાયને દ્રવ્યની કોઈને હા, બધા બધા સ્વતંત્ર છે. ઓ જેમ બોય. આજના છોકરાઓ બધા સ્વતંત્ર છે ને એમ. આપણે એટલા સ્વતંત્ર નથી થવાનું પછી પછી ચાલો. અચ્છા અચ્છા, મામા પણ તો કેવી રીતે? હા, બોલ. મને એવું લાગે છે કે પંડિતજી બધા આવી ગયા લાગે છે, ઓહ પણ હવે એમને એટલે કીધું નહીં હોય ને આપણને. ના, શું રજની આવીને ગયો. શું કહેતું? 8 હા જણા એટલે છીએ. ના હા પંડિતજી આપણે જે સંસ્કૃત શીખવાડે ઓહ છે ને એ ઓહ આવી ગયા છે ઓનલાઈન. ઓહ, અચ્છા અચ્છા અચ્છા. તો આપણે ગુરુવાર હોય છે ને રોજ ઓહ, મંજુબેન શોભનાબેન કંઈક નું એવું છે? પછી તો આજે પછી એમનું છોકરાઓ કરવું એમને છે તો કાલે તમારે એમને છોકરાઓ જે અને એમનો ટાઈમ એટલે થઈ એમને ગયો કહેવું એટલે હોય આવી એ ગયા છે. હા, એ સાચું. નિમિષાબેન આવી ટાઈમ ગયા વહેલું હોય છે ને, તે દિવસે છે. હા ટાઈમ વહેલું હોય છે ને, હા એટલે એટલે આવી ગયા 8:30 થી લાગે. 9:30 શોભનાબેન નું હોય છે ને 9:30 થી એમનું એટલે હોય છે આવી એટલે ગયા. આવી ગયા છે. હા હા હા. હા, તો એમને એમની પાસે છે તો એ સાંભળો પેલા લઈ લઈએ. તો સાંભળો તો એમનો લાભ કેવી રીતે લેવા અત્યારે? હે? ના એટલે એ તો એમ નહીં એટલે એમને આપણે આવ્યા જ છે, એટલે પંડિતજી આવ્યા છે, તો એમનો લાભ કેવી હા રીતે લેવો છે? એટલે એટલે કાં વ્યાખ્યાન થાય ને કાં પછી પંડિતજી હા, ભણાવે વ્યાખ્યાન કરીએ તો તો પણ પછી એમને કેવું પડે ને. હા, તો કહીએ શું હા કેવું? બોલો. હા એટલે કાલે શોભનાબેન આવવાના છે ને. હવે કઈ નહીં, હા પંડિતજી આવી જ હા ગયા છે. આપણે ઝૂમમાં પંડિતજી આવી ગયા, તેમને શું કેવું છે હા આપણે? આમાં મંજુબેન, આમાં રજનીભાઈ અમારે ખાલી રજનીભાઈને છે ફોન કરો. રજનીભાઈને જવા રજનીભાઈને દો. ફોન. રજનીભાઈ ઇઝ બિઝી વિથ અને ગેસ્ટ આવી ગયા છે. આપણે ઓકે આપણે ઓકે. એમ તો નહીં આપણે એમને પંડિતજીને ચોખ્ખી વાત કરી નાખો ને કે જે શું થયું એ કહી દો હા, કે અમારે શોભનાબેન કાલે નું કાલે છે. ચેન્જ કર્યો છે પ્રોગ્રામ કઈ. પણ આપણે આમાં દેખાતા નથી મને છે તો. છે એ આર્યા છે એક મિનિટ ને. છે અચ્છા. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. पंडित जी नमस्कार। हाँ जय जिनेन्द्र નમસ્કાર साहब कैसे હા हैं જય आप? નમસ્કાર જીનેન્દ્ર ठीक सब જય अच्छा, જીનેન્દ્ર आज જય ऐसा हुआ है, જીનેન્દ્ર. क्या आपका रजनी भाई आज नहीं आ पाएंगे। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम लोग बाकी सब है इधर, तो हाँ आप कुछ हमारी तो ये कर्ता कर्म की 80 से 83 गाथा चल रही थी। वैसे हम रेगुलरली करते हैं ना, उसमें उधर आए हैं, पर आप जो भी विषय लेना चाहो उस पर आज बात करें आप। પેલું સંસ્કૃત वो સંસ્કૃતમાં ये શું છે રજની વધારે રસ લે છે. अच्छा, आपको तो तो तुम्हारे संस्कृत सीखવું છે મંજુબેન? ના ના એટલે संस्कृत મામા પંડિતજી સંસ્કૃત શીખવાડે છે હવે આજે મામા નથી સમજી એટલે ગયો, એ જો પણ કાલે શોભનાબેન નું મામાએ કાલે રાખ્યું છે સારું, એટલે પણ હવે શોભનાબેન પછી આવતા હોય છે પણ આજે આજે મામા નથી ને માત્ર પછી સંસ્કૃત अच्छा શીખવું છે એમ अच्छा, हाँ, ये भी बात है। पंडित जी, इनकी टीका अपनी चल रही है नहीं ऐसा है, वो आज जो आज का प्रोग्राम था ना, वो हाँ कल पे कर लिया है रजनी भाई ने। वो शोभना बेंच के साथ होता था और आपका साथ होता है ना, जो संस्कृत का हाँ प्रोग्राम, वो कल का पर
आप आए हैं तो वो संस्कृत आगे करना, तो तुम्हारे पास संस्कृत की बड़ी वस्तु है वो अच्छा निमिषा है जी। आप એમાં क्या એમાં શું છે? नहीं, वो उसमें रजनी भाई ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं हाँ ना, हाँ, तो हाँ वो कल ठीक हाँ रजनी भाई होगा तो कल आपको तो आज अनुकूल है। आज आज संस्कृत रहने दिए। आप ये गाथा कल आ सक नहीं तो आज अब का आज 23, 24, 25 गाथा है ना समय सारथी की, हाँ जी उसके अनुसार ऐसी समय कैसी है? गाथा 23, 24, 25 अच्छा वो लेते हो आज तो मैं वो निकालूं। हाँ वो ले लो आप आज, और अच्छा फिर अच्छा ठीक है। संस्कृत टुमारो हाँ लेना अगर अच्छा हो सके तो। हाँ 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 तो हूँ तो 23, 24, 25 तो ले लो उसे। हाँ ठीक है, 23, 24, 25 गाथा हाँ, लेते 1 हैं। मिनट में गाथा निकाल लेता हूँ। निकाल लें, समय ले सारथी की गाथा निकाल लें। हाँ जी हाँ जी 23, 24, 25 गाथा। हाँ जी 1 मिनट ना। अगर आपको निकाल के शेयर करना है तो अनुभव जी है वहाँ, और या आप कर सके तो। नहीं चालो ना जी ये 23, 24 के लिए ले लो ना। हाँ एम એજ करिए। કાઢે છે મામા, એજ કાઢે निकाल છે। ली, हाँ 23, 24, 25। हाँ हाँ जी 1 निकाल मिनट ना। निकाल रहे। हाँ गाथा पढ़ते हैं अपन। हाँ हाँ 1 मिनट ना अब पंडित जी। आय व्यवस्थाय क्रियते। अब अप्रतिबुद्ध जीव को अच्छा समझाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ आचार्य देव, अमृत चंद्र देव ये कह रहे हैं उत्थानिका में कि हम अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव को समझाने का प्रयत्न करते हैं। मैं हाँ समझा सकता हूँ ऐसा हठाग्रह नहीं है। आई गयो। हाँ अच्छा लेकिन मैंने भाव है, हाँ यानी रत्नत्रयधारी मुनिराज स्वयं तो स्वरूप में आनंद रस को, अमृत रस को पी रहे हैं, लेकिन उन्हें भाव आता है कि मुई जी कहाँ हाँ भटक रहे हैं, हाँ इन्हें अपने स्वरूप का वैभव का पता नहीं है। हाँ तो जी उनको ये पता है कि रहस्य को ये विश्व के जीव समझे, सुखी हो, इसलिए हाँ वो हाँ समझने का प्रयत्न करते हैं। तो मूल गाथा अपन पढ़ते हैं। हाँ जी अण्लाण મામા નીચું કરો થોડું એટલે हाँ સંસ્કૃત આવે। हाँ अणदिपोगलं दवं बद्धमबद्धं च ता जीवो बहुभाव संयुक्तो सवर्णुणान्वितो जीवो भोगलक्षणो नित्यं कैतोपोगलदवि बुधो जम्पति मध्यमिणम् जदिशोपोगलदवि भूतो जीवत्यमागदम् इदिरं तो तक्कोवत्तुं जे मज्जिमिडं पोगलम दव्वम। अब इसका अनुवाद पढ़ लें हिंदी में या हाँ गुजराती में। हाँ जी मैंने गुजराती निकाला है, आप बोलो तो हिंदी निकाल लूँ। आप ના આપણે गुजराती पढ़ लो। गुजराती पढ़ लूँ। हाँ गुजराती पढ़ लो। हाँ जी आप पढ़ते हैं मैं पढ़ूँ। अच्छा आप पढ़ लो, अच्छा मेरे ठीक है। पास हिंदी। हाँ ठीक है तो अच्छा गाथार्थ पढ़ता हूँ। हाँ गाथार्थ से शुरू करूँ क्या। हाँ गाथा गाथा पढ़ लो। हाँ अच्छा ગાથા अच्छा અચ્છા હવે અપ્રીતિ બુદ્ધને સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે। हाँ અજ્ઞાનથી મોહિત મતિ બહુભાવ સંયુત જીવ છે આબદ્ધ તેમ બદ્ધ પુતગલ દ્રવ્ય મારું તે કહે સર્વજ્ઞ જ્ઞાન વિશે સદા ઉપયોગ લક્ષણ જીવ છે તે કેમ પૂતગલ થઈ શકે કે મારું આ તું કહે અરે જો જીવ પૂતગલ થાય
પામે પૂતગલો જીવત્વને તું તો જ એમ કહી શકે આ મારું પૂતગલ દ્રવ્ય છે. अच्छा गाथार्थ तो पढ़ू ना? अद्भुत रहस्य अर्थ समझा रहे हैं। हाँ जी. देखो मूल गाथा प्राकृत भाषा में है अच्छा. और उसको अण्लाण मोहित मति माने अज्ञान से जिसकी मति मोहित है। अण्लाण मोहित मति जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और बहुभाव संयुक्तो माने मोराग देश आदि अनेक भावों से युक्त जीव। कैसा जीव कि जो अण्णान मोहित मति अज्ञान से जिसकी मति मोहित है। हाँ जी. दूसरी बात बहुभाव संयुक्तो और जो मोह राग देश आदि अनेक भावों से युक्त है। ऐसा जीव कहता है, ऐसा जीव वर्णदि माने कहता है। क्या अच्छा. कहता है कि इदम बद्धम तथा च अबद्धम पुद्गलम दब्बम, यह बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य ये मम ये मज्जमिणम ये मेरा है, मज्जमिणम यह मेरा है, ऐसा कहता है। कौन कहता है? अप्रतिबुद्ध जीव। कौन कहता है? आचार्य कहते हैं. जिसकी मत अप्रतिबुद्ध जीव। हाँ हाँ. माने जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, हाँ जी. अज्ञान मोहित, हाँ जी. जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और बहुभाव संयुक्तो जीवो। हाँ. बहुभाव संयुक्तो माने मिथ्या तुराग देश क्रोध आदि हाँ अनेक जी. भावों से संयुक्त जीव। ऐसा जीव वर्णदि कहता है। क्या कहता है कि बद्धम अबद्धम च तहा, बद्धम तथा च अबद्धम पौगलम दब्बम। तो बद्धम में शरीर ज्ञानावरणादि कर्म ये बद्ध है, ये हाँ जी. क्षेत्रावधि। और अबद्ध में संयोग रूप स्त्री पुत्र मकान धन वैभव प्रॉपर्टी ये सब क्या है? अबद्ध। इस तरह शरीर आदि बद्ध और धन धान्य आदि अबद्ध। ये पौगलम दब्बम मज्जमिणम ये मेरा है, ऐसा कहता है। कौन कहता है? मोहित जीव. ज्ञानी जीव जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो बहुभाव त्यातुरागादि भाव से संयुक्त है। ऐसा जीव ये कहता है कि ये शरीर स्त्री पुत्र मकान धन वैभव माने विश्व के सर्व पदार्थ ये मैं हूँ। क्या कहता है? मज्जमिणम ये मेरे हैं, ऐसा कहे भणदि कहता है। या कहता है का अर्थ क्या है? मानता है. कथन तो ज्ञानी भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी कहते हैं कि राज्य वैभव ये सब मेरा है, ईरानिया महल सब मेरा है, हाँ जी. कहते हैं। लेकिन अभिप्राय में एक परमाणु मात्र में भी मूर्छा भाव नहीं है। तो यहाँ कहता है माने मानता है। और हाँ. कितना मानते हैं? मान लीजिए किसी के पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हाँ जी. तो उसकी इच्छा कितनी है? बहुत ज्यादा. 20 करोड़ के प्रति नहीं है, विश्व के अनंत पदार्थों में मूर्छा भाव चल रहा है कि ये मैं हूं। क्या ये मैं हूं, मैं इसका करता हूं, भोगता हूं। ऐसी मूर्छा का परिणाम
विश्व के अनंत पदार्थों में चल रहा है। तो फल काय का मिलता है? अनंत फल पदार्थ। अंतरंग में अभिप्राय में जो वासना चल रही, मूर्छा परिणाम चल रहा है, उसका मिलता है। तो मूर्छा कितने पदार्थों में अपनी? अनंत। विश्व के अनंत पदार्थों में मूर्छा भाव चल रहा है। समझ में आए ना? तो इससे क्या है, अब ऐसा जीव, ये अज्ञानी जीव की बात कही कि अज्ञान से जिसकी मति मोहित है और बहुत मिथ्यात्व रागादि भाव से संयुक्त जीव ऐसा कहता है कि ये शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, धन, वैभव, ये सब पदार्थ मेरे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? सवर्णुणान दिट्ठो जीवो। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में देखा हुआ जीव है। दृष्टय माने देखा गया। किनके ज्ञान में? सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में देखा हुआ जीवो, जीव है। पहले सत्ता सिद्ध की और प्रमाण किसका दिया? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ भगवान का। क्यों दिया? आचार्य कुंद कुंद देव ने सर्वज्ञ भगवान का प्रमाण क्यों दिया? लोगों ने उसका विश्वास है। हाँ, क्यों दिया? क्योंकि आगम के मूल वक्ता सर्वज्ञ देव है। कौन है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। अच्छे मूल ग्रंथ करतार है सर्वज्ञ देवा। आगम के मूल वक्ता कौन है? सर्वज्ञ देवा। तो आप्त वचनम आगमम, आप्त के वचन, दिव्य ध्वनि, वो आगम है। तो यहाँ प्रामाणिकता का आधार बताया कि सर्वज्ञ भगवान उनके वचन प्रमाण है। क्यों है प्रमाण? इसका सर्वज्ञ जगह में समझ गया है कि वक्त्र प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो वक्ता अर्थात आप्त पुरुष प्रामाणिक हैं, इसलिए उनके वचन प्रमाण है, माने सत्य हैं। क्यों है उनके वचन प्रमाण? क्योंकि वक्ता कैसा है? प्रामाणिक है। प्रामाणिकता का आधार क्या है? कि वीतरागी और सर्वज्ञ है। ये प्रामाणिकता है। प्रामाणिकता क्या है सर्वज्ञ भगवान की? वीतरागी है। वो वीतरागी और सर्वज्ञ है। क्योंकि अज्ञान और कषाय भाव में मिथ्या वचनों की प्रवृत्ति होती है। कौन से भाव में? अज्ञान और मिथ्या भाव। अज्ञान और कषाय भाव, ये मिथ्या वचनों की प्रवृत्ति का कारण है। लेकिन आप्त पुरुष का स्वरूप कैसा है? वीतरागी और सर्वज्ञ। मैंने उन्होंने कषाय का अभाव किया है और सर्वज्ञ है। ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान रिद्धि संपन्न है। इसलिए उनके वचन कैसे हैं? प्रामाणिक हैं। मन उनके वचनों में आगम, तर्क, न्याय, युक्ति की कसौटी पर कस के परख हैं। तो कहीं किसी तरह का विरोध नहीं है, प्रामाणिक है। ये सबसे बड़ा आचार्य देव ने प्रमाण दिया है कि सवर्णुणान दिट्ठो जीवो। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में दिट्ठो माने देखा हुआ, जीवो जीव है। पहले सत्ता सिद्ध की कि जीव है। अब कैसा है जीव? उपभोग लक्षणों नित्यम का अन्वय करें तो नित्यम उपभोग लक्षण, कि नित्य उपयोग लक्षण में है। माने अपना स्वरूप कैसा है? उपयोग लक्षण। हाँ, वो भी नित्यम उपयोग लक्षण, माने सदा नित्य। काल में उपयोग लक्षण में हूँ।
कैसा मेरा स्वरूप है, उपयोगो लक्षणम। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी देव अपने स्वरूप का परिचय कराया। तो क्या सूत्र दिया? उपयोगो लक्षण। इसकी व्याख्या आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में की है कि साधुविदो, उपयोग के दो भेद हैं, ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयोगश्च। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब वो ज्ञान दर्शन उपयोग कैसा है कि चैतन्यान विधायी परिणाम है, उपयोग है, जो चैतन्य के साथ सदा काल विद्यमान रहता है, वह उपयोग है। ये ज्ञान दर्शन उपयोग कैसा है कि जीव चाहे निगोद में हो या सिद्ध दशा में हो, ये ज्ञान दर्शन का कभी अभाव नहीं होता है। हाँ, ये कैसा है? ये चैतन्य के साथ सदा काल विद्यमान रहता है, अभिन्न भाव, तादात्म्य, एक में एक है। समझ में आए ना? तो हमारा तो मेरा अज्ञान, तो हमारा अज्ञान कहाँ से आता है? ये तो हमारा है। तो कर्म के उदय जनित भाव है, ये अच्छा, स्वभाव नहीं है। हाँ, कर्म जनित भाव है और बहुत भाव है, उसमें भ्रमित होते हैं, लेकिन हाँ जी, वास्तव में अपना स्वभाव तो सदा काल विद्यमान है। हाँ जी, आचार्य अमृत चंद्र देव ने एक बहुत बढ़िया रहस्य बताया है कि अस्थि पुरुष है चिदात्मा। माने पुरुष है अस्थि, पुरुष माने आत्मा है। कैसा है कि चिदात्मा, आत्मा चित। आत्मा माने स्व और चित माने भाव। आत्मा माने क्या है? स्व। स्व, और चित माने भाव। अब दोनों को मिला दे, आत्मा चित, इसका क्या होगा? स्वभाव। तो स्व, अपना स्वभाव क्या है? चेतना। चेतना, ये मेरा स्वभाव। इसको आचार्य देव ऐसे ही प्रयोग करते, चिद घन। घन माने सॉलिड, हाँ इसमें जी, कर्म विकार का इंटरफियर नहीं है। अच्छा, अपना स्वभाव कैसा है? चिद घन, चैतन्य घन स्वरूप है। माने क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब कर्मकृत भाव है। ये मेरा स्वभाव नहीं है। नहीं है। स्वभाव क्या है? चित। चित, चेतना, ज्ञान, ये मेरा। समझ में आया ना? हाँ जी, चित के द्वारा अपने स्वरूप का परिचय कराया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सूत्र दिया है कि चेतना लक्षणो जीव है। जीव का लक्षण क्या है? चेतना। चेतना, ज्ञान दर्शन, ये अपना लक्षण है। समझ में आया ना? ज्ञान दर्शन ये अपना लक्षण है। और कैसा लक्षण है? ज्ञान दर्शन लक्षण कैसा है? उपयोग में माने अविनाभाव। अविनाभाव आत्म एक में एक है। कभी भी जीव के साथ ज्ञान दर्शन का अभाव नहीं होता है। नहीं। शरीर आदि संयोग तो मिलते बिछुड़ते हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन स्वभाव कैसा है कि सदा मान रहता है। इसका न्याय शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। पंडित दीपचंदी शाह ने भाव दीपिका में भी स्पष्ट किया है कि जीव कैसा है? ज्ञान दर्शन, चेतना। चेतना अर्थात जीव। ज्ञान दर्शन कैसा है? ज्ञान दर्शन, जानना, देखना, ये जीव का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है कि अविनाभाव, तादात्म्य, एक में एक है। मन जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान दर्शन, और जहां जहां ज्ञान दर्शन नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है। अविनाभाव माने
तादात्म्य एक में एक है। तीनों काल विषय, ज्ञान बिना आत्मा नहीं और आत्मा बिना ज्ञान नहीं। माने ये तीनों काल विषय, किसी भी काल में ज्ञान दर्शन और आत्मा का कभी अभाव होता नहीं है। समझ में आया ना? तो ये अपना लक्षण क्या है? उपभोगो लक्षणम, नित्यम उपभोग लक्षण। कैसा हूं मैं? नित्य नित्य सदा। लक्षण में हूँ। इस स्वरूप की परख हो जाए आगम तर्क न्याय युक्ति से, तो अनंत मिथ्या विकल्पों से, मिथ्या प्रपंचों से मुक्ति हो जाए। अनंत मिथ्या कर्तृत्व के भार से निर्भर हो जाए। अपना उपयोग बहुत भटक रहा है कि ये मेरा, ये मेरा, ये बाह्य पदार्थों में उपयोग दौड़ रहा है। लेकिन अपने स्वरूप का एक बार परिचय हो जाए तो कैसा अनुभव होता है कि मैं नित्यम उपयोग लक्षण हूं। मैं कैसा हूं कि नित्य उपयोग लक्षण में हूं। कोटि भट्ट श्रीपाल महाराज कौन थे? कोटि भट्ट श्रीपाल महाराज कौन थे? महामंडलेश्वर थे, हजारों राजाओं के स्वामी थे, अपार वैभव समृद्धि और कोटि भट्ट, करोड़ों योद्धाओं का बल। भट्ट माने योद्धा और कोटि माने करोड़, करोड़ों योद्धाओं का बल था। छायक सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले महापुरुष। लेकिन कर्म का उदय कैसा चल रहा है? कुष्ठ व्याधि चल रही। कौन से कर्म का उदय चल रहा है? वेदनी। कौन से कर्म का उदय चल रहा है? वेदनी। हाँ, असाता वेदनी। असाता वेदनी, असाता वेदनी। साता वेदनी, असाता हाँ वेदनी। असाता वेदनी। कुष्ठ वेदना चल रही, तो कौन सा उदय चल रहा है? असाता वेदनी कृति का उदय चल रहा है। पर कोटि भट्ट श्रीपाल महाराज अपने स्वरूप को कैसा देख रहे हैं? कैसा देख रहे हैं? उपयोग मैं तो उपयोग में ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण में हूँ, ज्ञान दर्शन में हूँ। ये कुष्ठ व्याधि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो पुद्गल परमाणुओं का शरीर का परिणमन है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो साक्षी भाव से देख रहे हैं कि कर्म के उदय में इस शरीर का परिणमन हो रहा है। और मेरा स्वरूप मैं कैसा हूँ? नित्यम उपभोग लक्षणों। अपने स्वरूप को कैसा देख रहे हैं कि मैं तो नित्य उपयोग लक्षण में हूँ। तो कुष्ठ व्याधि को वो ज्ञान में आई कि नहीं आई? कुष्ठ व्याधि को भट्ट श्रीपाल महाराज ने जाना तो ज्ञान में कुष्ठ व्याधि आई कि नहीं आई? हाँ आई। है? ज्ञान में तो आएगी। कैसी आई? ज्ञान में नहीं आई। हाँ, जाना, ज्ञान ने जाना। हाँ बराबर बराबर, बहुत अच्छा। तो ज्ञान में कुष्ठ व्याधि का ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान ही है। उसमें कुष्ठ क्या एक परमाणु का भी तादात्म्य हुआ नहीं है। लेकिन मोह की गहनता में, मिथ्यात्व के परिणाम में ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये कुष्ठ व्याधि ये मैं हूं, ये कैंसर ये मैं हूं, डायबिटीज ये मैं हूं, हार्ट की प्रॉब्लम ये मैं हूं। ऐसा ये कर्मकृत जो व्याधियां हैं उसमें मूर्छा का परिणाम होता है। कब होता है ये मूर्छा? अज्ञान होता है तब, अज्ञानी। कि जब जीव अज्ञानी होता है तब। अपने स्वरूप की परख नहीं हो तो कर्मकृत भावों को हम आत्मा ये मैं हूं ऐसा अनुभव। तो कैसा अनुभव होता है कि कैंसर, डायबिटीज, गठियावाद, ये कुष्ठ व्याधि ये मैं हूं ऐसा अनुभव करते हैं। लेकिन अपने स्वरूप की परख हुई,
कि मैं नित्यम उपयोग लक्षण, कि मैं नित्य उपयोग लक्षण में हूँ, तो कैसा कैसा अनुभव होता है? मैं व्याधि को जानता ज्ञान और हूँ। आनंद, आनंद। व्याधि का ज्ञान तो होता है, लेकिन ये मैं हूँ ऐसा उसमें व्यामोह का परिणाम नहीं होता है। कोटिभट्ट श्रीपाल महाराज, जितना मोह है उतना उपचार भी हो रहा है, सेवा शुश्रूषा भी हो रही है, पर अंतरंग में श्रद्धा कॉन्फिडेंस पावर क्या चल रहा है? ये सब मैं नहीं कर्म हूँ। खेल है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अपने स्वभाव की परख हुई है, इसलिए प्रति क्षण आनंदित है। समझ में आए ना? हाँ जी। हाँ। आचार्य देव ने एक सूत्र दिया है, जिसने आगम, तर्क, न्याय और युक्ति की कसौटी पर कसकर अपने स्वरूप को परख लिया है, तो विश्व में ऐसा कौन होगा जो ये कहेगा कि ये पर पदार्थ मेरे हैं? पर पदार्थ की सत्ता तो है, पर ये पद पदार्थ ही मेरे हैं ऐसा उसमें मूर्छा का परिणाम नहीं होता है। प्रतिक्षण सजगता होती है। अपने स्वरूप की परख हो जाए तो दर्शन मोह मिथ्यात्व और अनंतान मंदी कषाय गल जाती है, और जहाँ मिथ्यात्व और अनंतान मंदी कषाय गलती है वहां मूर्छा मिट जाती है, और मूर्छा रहित व्यक्ति प्रतिक्षण प्रसन्नता का अनुभव करता है। मूर्छा रहित व्यक्ति कैसा अनुभव करता है? प्रतिक्षण प्रसन्नता का। प्रतिक्षण, हर क्षण, चाहे जैसे कर्म का उदय हो, चाहे साता वेदनी चाहे साता वेदनी, वो प्रतिक्षण प्रसन्नता का अनुभव करता है। और देखो, जब कोटिभट्ट श्रीपाल महाराज अष्टांग का महापर्व चल रहा है, विधान अनुष्ठान परिणाम हुए, तो सत्ता में जो पाप प्रकृतियां थी ये पुण्य में कन्वर्ट हो जाती, संक्रमण हो जाता है, और पुण्य प्रकृतियों के रसन भाग बढ़ जाते हैं, उत्कर्षण हो जाता है, और पाप प्रकृतियों के रसन भाग घट जाते हैं, उनका अपकर्षण हो जाता है। और जब वो उदय में आती हैं तो स्वस्थ सुंदर शरीर, यश, वैभव, ये सब उदय में आए तो कोटिभट्ट श्रीपाल महाराज क्या विचार करते हैं कि ये साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, मैं कौन हूँ? मैं तो नित्य उपयोग लक्षण में हूँ। ये साता वेदनी कर्म उदय जनित संयोग ये मेरा स्वभाव नहीं है। नहीं है। तो प्रसन्नता का आधार क्या है? प्रसन्नता और समृद्धि का आधार क्या है? जो अपना नित्य उपयोग में स्वभाव, अनंत वैभव संपन्न स्वभाव, ये प्रसन्नता और समृद्धि का आधार है। बाह्य पदार्थ ये प्रसन्नता और समृद्धि के आधार नहीं है। नहीं है। हाँ। कोई व्यक्ति ये माने कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस है, और एक बंगला विदेश में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, बैंक बैलेंस बहुत है, उसको विचार कर करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। ये प्रसन्नता कैसी है? ये प्रसन्नता कैसी? पुण्य के वैभव को देख करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। वो चिंता ये कर रहा है। प्रसन्नता कैसी है? चिंता। हाँ, नश्वर ये परिग्रह, संधि, रौद्र ध्यान, ये कौन सा है? रौद्र ध्यान। हाँ, पुण्य के वैभव में प्रसन्नता का अनुभव करना, ये परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान का परिणाम है। ये दुर्गति का कारण है। ज्ञानी प्रसन्नता का अनुभव किसके बल से करते हैं? अपने स्वभाव को देख प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ये मैंने कोटिभट्ट श्रीपाल महाराज का प्रमाण दिया, और भी बहुत से महापुरुषों के प्रमाण हैं। अब देखो, आचार्य देव आगे तर्क और न्याय की कसौटी पर कस के अपने स्वरूप का परिचय कराते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, कि कह सो पोगल दब्बी भूदो,
सो माने वह जीव द्रव्य, सो माने वह जीव द्रव्य पुद्गल दब्बी बूधो कह, पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? जम भणति मज्जमिडम, जिससे तुम ये कहते हो कि यह मेरा है। जम माने जिससे, भणति तुम कहते हो कि मज्जमिडम ये मेरा है। क्या कहा? अब न्याय से समझाते हैं कि यदि सो पोगल दब्बी बूधो, यदि सो माने वह जीव द्रव्य, सो माने वह जीव सो द्रव्य, क्या बताया? वह वो जीव जीव द्रव्य, पोगल दब्बी बूधो, यदि वह जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, या इदिरम जीवत्तम आगदम, या पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त हो जाए, तो तको तुम जे मज्जमिडम पोगलम दब्बम, तो तुम ये कह सकते हो कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। कब कह सकते हो? कि यदि जब पुद्गल जीव पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, या पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त हो जाए, तो तुम ये कह सकते हो कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। पर वास्तविकता क्या है? नहीं है। कि अनादि काल से कर्म का, शरीर का संबंध जीव के साथ चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? अनादि संबंध। लेकिन क्वापी काले न तादात्म्य वृत्ति, किसी भी काल में आत्मा कर्म के साथ, विकार के साथ एक में एक तादात्म्य हुआ नहीं, नहीं है। है ना? माने अनादि से संबंध है। जैसे स्वर्ण पाषाण है, मिट्टी किट्टी कालमा सहित होता है, लेकिन संयोग शब्द, मिट्टी कालमा होने पर भी उस स्वर्ण है वो मिट्टी किट्टी कालमा के साथ तादात्म्य एक में एक नहीं होता है। नहीं होता। यदि स्वर्ण मिट्टी रूप हो जाए तो तपाने पर शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति संभव नहीं। नहीं। ऐसे कर्म के उदय में, कर्म के संयोग होने पर भी अपना स्वभाव कैसा है? शुद्ध। ज्ञान दर्शन रूप, दर्शन। स्वभाव तो अपनी सत्ता में पूरा विद्यमान है। वह किसी भी काल में कर्म के साथ एक में एक तादात्म्य हुआ नहीं। नहीं, जैसे मणि है, मणि कीचड़ में पड़ा है, तो मणि कीचड़ में लिप्त होने पर भी मणि का स्वरूप कैसा है? कीचड़ में मणि पड़ा है तो वो मणि का स्वरूप कैसा है? प्रकाशमान। माने कीचड़ में होने पर भी मणि का स्वरूप, मणि की सत्ता में पूरा विद्यमान है। वो कीचड़ के साथ मणि तादात्म्य एक में एक हुआ नहीं। नहीं है। नहीं। चैतन्य मणि कर्म मल के साथ चला रहा नादि काल से। कर्म क्या है? मल है, कीचड़ है, और चैतन्य बहुमूल्य मणि। तो ये चैतन्य मणि कर्म मल के साथ होने पर भी चैतन्य मणि का स्वरूप कैसा है? कि दर्शन चैतन्य का स्वरूप चैतन्य मणि में पूरा विद्यमान है। वह कर्म मल के साथ किसी भी काल में तादात्म्य एक में एक हुआ नहीं। नहीं। समझ में आया नहीं? देखो हाँ जी। पंडित जी शाह ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि चेतना उपयोग योग साथ तो विराजमान। अपना स्वरूप कैसा है? चेतना उपयोग। चेतना, कैसा है? साथ तो विराजमान, शाश्वत विराजमान है। गति गति भ्रमियों तो अमल अनूप है। माने पंच परावर्तन में बहुत बहुत अनंत भ्रमण हुआ है। गति गति तो मेरा स्वरूप कैसा है? अमल अनूप है, निर्मल है, अनुपम है। जैसे मणि माही को कांच खंड माने, जैसे कोई व्यक्ति मणि को कांच माने
हाँ जी, तो महिमा न जाए, बामे बाई को स्वरूप है। मणि को कांच मानने पर भी मणि के स्वरूप की महिमा कहीं जाती नहीं है। नहीं है। बामे बाई को स्वरूप है। मणि का स्वरूप मणि की सत्ता में पूरा विद्यमान है। वह कीचड़ के साथ किसी भी काल में एक में एक हुआ नहीं। नहीं। ये समझ में आया ना? जी जी। अब को आचार्य अमृतचंद्र देव ने सब समझाने के बाद आगम तर्क न्याय युक्ति से अपने स्वरूप का परिचय कराया और हाँ, अंत में आचार्य अमृतचंद्र देव एक बहुत महत्व की बात कहते हैं कि तत्सर्वता प्रसीद, अब तुम सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। लास्ट में दिया है तत्सर्वता प्रसीद। ये टीका में संस्कृत टीका देखें आचार्य अमृतचंद्र देव की, उसमें अंतिम में दिया है, बाकी याद रखने लायक है। मिला आपको? नहीं, एक मिनट। नहीं, संस्कृत में। तत्सर्वथा प्रसीद मिला? हाँ, એટલે हाँ, तत्सर्वथा प्रसीद, अब तुम सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ મામા और નેક્સ્ટ विबुद्ध પેજ पर છે अच्छा, आगे जवा दे ये એ સંસ્કૃતમાં જોવાનું છે અને નેક્સ્ટ सावधान પેજ हो, પર છે। तारी પાસે તો તું જોઈ લે. हाँ मम इदम इति अनुभव, स्वद्रव्य को ये मम ये मैं हूँ ऐसा नित्य अनुभव करो। क्या क्या कहा अंत में आचार्य अमृतचंद्र देव कि अब तुम सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ और सावधान हो। विबुद्ध माने सावधान हो। और स्वाद्रव्यम मम मम इदम इति अनुभव, इस स्वद्रव्य को ये मम ये मैं हूं ऐसा नित्य अनुभव करो। क्या का प्रसन्नता और समृद्धि का आधार क्या है? स्वद्रव्य, अपनी सत्ता है। क्या आधार है? अपना स्वद्रव्य। समृद्धि का सॉलिड बेस क्या है? ના સ્વરૂપ. अपना शाश्वत स्वद्र- स्वभाव। स्वाद्रव्यम ये तो है, लेकिन स्वाद्रव्य की सत्ता तो विद्यमान है, लेकिन मम इदम इति अनुभव, स्वाद्रव्य की सत्ता तो मेरा है, है, लेकिन ये मैं हूं मैं हूँ ऐसा उसमें अनुभव. अपनापन हो तो प्रसन्नता का अनुभव होता है। मणि है और कोई हाँ मणि जी, को कांच मानता रहे तो क्या हाँ, होगा कि मणि की सत्ता विद्यमान है, लेकिन वो अपने को कैसा मान रहा है? काच मैं मान. दीन हूँ, दुखी हूँ, दरिद्री हाँ, हूँ, हाँ जी, फटे चिथड़े कपड़े पहन रहा है, हाँ जी. दुखी जीवन जी रहा है। क्यों? कि मणि की सत्ता तो विद्यमान है, फिर दुखी क्यों हो रहा है? तो नजर नहीं आती, મારું છે અનુભવ નથી उसको થયો। नजर में नहीं आता, स्वभाव की परख नहीं है। परख नहीं है. ऐसी चैतन्य मणि की सत्ता तो विद्यमान है, फिर दुखी क्यों है? क्योंकि अपने चैतन्य मणि की परख नहीं है। परख हो जाए तो निहाल हो जाए, कृतकृत हो जाए, ऐसा अपना स्वरूप है, वैभव है। देखो मेरा एक प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, एक अष्टांग का महापर्व चल रहा है और मैं कोटा गया था अष्टांग का महापर्व में। तो बाबूजी युगलजी साहब कोटा वाले हाँ जी. के पास में प्रतिदिन दोपहर में चर्चा के लिए जाता था। तो मैं पहुंचा तो बाबूजी के चरण स्पर्श किए और मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? तो हाँ, बाबूजी ने सरसरी निगाह से देखा कि तबीयत की पूछते हो तो तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने अच्छा कितना अच्छा. बैलेंस, मैंने ज्ञानियों का कितना बैलेंस होता है। एक और व्यवहारिक पहलू है कि तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन पारमार्थिक पहलू क्या है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरा स्वभाव तो मेरी सत्ता में पूरा विद्यमान है। तो कौन सी पावर काम कर रही है कि हाँ, अपने स्वभाव अपनापन है।
अपना फिर मैंने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी आपको इतनी सारी व्याधियां घेरे हैं, आपकी आराधना कैसे चल रही? हाँ तो बाबूजी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया कि कर्म उदय और व्याधि ने मेरे स्वभाव को छुआ ही नहीं है। मैंने कितना कॉन्फिडेंस कि कर्म उदय है, व्याधि है, पर इस कर्म उदय और व्याधि ने मेरे स्वभाव को छुआ ही नहीं है। मेरा स्वभाव तो मेरी सत्ता में पूरा विद्यमान है। तो प्रसन्नता और समृद्धि का आधार क्या है? क्या आधार है? अपनी पहचान। हाँ, स्वभाव को स्वाद जानना। मम इदम इति अनुभव। स्वाद्रव्य ये मैं हूँ, उसमें हाँ, अहम अपनापना हो। हाँ, जाकर तो प्रतिक्षण कैसा अनुभव होता है? प्रसन्नता का, प्रसन्न। आनंद का होता है। ये प्रसन्नता और समृद्धि का रहस्य है। हाँ जी, समझ में आए हाँ जी। क्या है प्रसन्नता पर और समृद्धि का रहस्य? कि अपने स्वभाव में अपनापन हो। हाँ, स्वभाव की सत्ता तो विद्यमान है, लेकिन प्रसन्नता का अनुभव कब होता है? ये मेरा है, स्वभाव हाँ, स्वभाव उसमें में अहम अपनापन करेंगे तो अपनापन होना चाहिए। भाई तो प्रसन्न का अनुभव होता है। अब इसमें से प्रश्न आप पूछ सकते हैं, टीका तो बहुत है, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत स्पष्ट था। अब हैं? आपका चालू रखो अपना, आपको जो नहीं, अच्छा बहुत अच्छी बात समझ कही। में आ गया। कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो ऐसा है, आचार्य सोमदेव सूरी हुए न्याय के प्रकांड विद्वान आचार्य हुए हैं। उन्होंने एक बात कही कि जब अपना स्वरूप जैसा है वैसा विद्यमान है, तो उसे तर्क न्याय युक्ति की कसौटी पर परखने की आवश्यकता क्यों है? भाई अपना स्वरूप तो जैसा है वैसा विद्यमान है। तो आचार्य सोमदेव सूरी ने बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने कि जिसने तर्क न्याय युक्ति की कसौटी पर कसकर अपने स्वरूप को परख लिया है, वह संकट के काल में खेद खिन्न नहीं होता है और पुण्य के वैभव में मदोन्मत्त नहीं होता है। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। अच्छा, ने तर्क न्याय और युक्ति की कसौटी पर कसकर अपने स्वरूप को परख लिया है, वह संकट के काल में खेद खिन्न नहीं होता है और पुण्य के वैभव में मदोन्मत्त नहीं होता। माने कैसे ही कर्म का उदय हो, वो प्रति क्षण कैसा अनुभव करते हैं? प्रसन्नता का आनंद प्रसन्नता का। का, आनंद का अनुभव करते हैं। देखो एक बहुत भद्र परिणामी जीव है और बहुत तत्व की रुचि वाला जीव है, लेकिन कर्म का उदय ऐसा चल रहा है, शरीर में व्याधि है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, पत्नी तीव्र कचार परिणाम वाली है, तो सामने देखने वालों को कैसा लगता है? बहुत बुरा। बेचारे कितने दुखी हैं, हाँ जी, कोई पानी की पूछने वाला भी नहीं नहीं। है। एक व्यक्ति आलीशान कोठी में बंगले में रह रहा है, गाड़ी, नौकर चाकर, ठाट बाट, बहुत सुविधाएं हैं, तो उसको देख के कैसा लगता है कि देखो बहुत कितने सुखी है। भाग्यशाली हैं। क्या कहा, कितने सुखी हैं, कितनी सुविधाएं हैं, हाँ लेकिन जी, बेचारे कितने टेंशन और डिप्रेशन में जी रहे हैं, ये दुनिया को दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हम सुख दुख का मूल्यांकन बाह्य संयोगों के आधार से करते हैं। हाँ कैसे करते हैं सुख दुख का मूल्यांकन? बाहर के बाह्य संयोग पर वास्तविकता क्या है कि सुख दुख का मूल्यांकन अंतरंग की परिणति से होता है। कैसे होता है? अंतरंग की परिणति। अंतरंग की परिणति। जिसके अंतरंग में कषाय परिणाम तीव्र है, वो मां दुखी है, और जिसके अंतरंग में तत्व ज्ञान की धारा चल रही है,
अपने स्वरूप की आराधना चल रही है, उत्तम विचार चल रहे हैं, क्या कहा, वो माँ भाग्यशाली है। समझ में आया ना? बाहर हाँ के जी। संयोगों से सुख दुख का मूल्यांकन नहीं होता है। कैसे होता है? अंतरंग अंतर परिवर्तन। परिणाम। से सुख दुख का मूल्यांकन होता है। तो जो तत्व ज्ञान की रुचि वाला है, तत्व रुचि वाला है, तत्व ज्ञान की धारा भीतर चल रही है, भले अचाता वेदनी कर्म का उदय, शरीर में व्याधि चल रही है, अपयस नाम कर्म का उदय चल रहा है, उपवास तिरस्कार हो रहा है, उपेक्षा हो रही है, लेकिन भीतर में तत्व ज्ञान का रस चल रहा है, धारा चल रही है। तो प्रति क्षण अपने को कैसा अनुभव कर रहा है? तत्व ज्ञान की धारा भीतर चल रही, तो कैसा अनुभव चल रहा है? आनंद, मतलब प्रति क्षण प्रसन्नता का अनुभव प्रसन्न। करता है। भले ही दुनिया के लोग उसे कुछ भी समझे, लेकिन जिसके भीतर तत्व की धारा चल रही, तत्व ज्ञान का रस चल रहा है, अपने स्वरूप का रस चल रहा है, वो कैसा अनुभव कर रहा है कि मैं तो आनंद, चित घन स्वरूप हूँ, मेरे आनंद, स्वभाव में कर्म उदय और व्याधि का इंटरफियर हुआ ही नहीं। वही नहीं है। माने वो प्रत्येक क्षण प्रसन्नता का, आनंद रस का अनुभव कर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपन कैसे उपलब्धि मानते, बाहर के संयोगों से उपलब्धि मानते, लेकिन जी। वास्तविक उपलब्धि क्या है कि अपने स्वरूप की परख होना और उस प्रतिक्षण प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जी। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। समझ में आया ना? जी। जैसे, हाँ, क्या कुछ पूछ रहे हैं? नहीं। हाँ, जैसे एक मणि है, तो मणि को मणि होने के लिए किसकी आवश्यकता है? मने मणि है, और कोई कहे तो कांच का टुकड़ा है, तो इससे क्या होने वाला है? मणि का स्वरूप तो मणि में पूरा विद्यमान है। जी। तो मणि होने के लिए मणि का स्वरूप तो मणि में विद्यमान है, ऐसे अपना चैतन्य मणि तो अपना स्वरूप अपनी सत्ता में कैसा है? पूरा विद्यमान। विद्यमान। हाँ, तो एक बार अपने स्वरूप की परख हो जाए तो भीतर में कैसी धारा चलती है कि ऐसे ज्ञान घन आत्मा नित्यमेव उपास्यता। एक ज्ञान घन आत्मा ही नित्य उपास्य है, उपासना योग्य है। कौन है उपास्य? कौन है? आत्मा। भगवान। एक अपना स्वभाव, भगवान की परम सौम्य शांत मुद्रा क्या रहस्य दर्शा रही कि वो आत्मन अपने स्वरूप से ब्रह्म भाव अंतर लखो। भगवान की मुद्रा अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है? अंतर्मुख। अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी मुद्रा क्या रहस्य दर्शा रही है कि वो आत्मन ब्रह्म भाव अंतर लखो। भाव माने अपना ज्ञान, आनंद, वैभव, प्रभुता, समृद्धि, निधान, वो अपने स्वरूप में, बाह्य पदार्थों में अपना वैभव और नहीं। समृद्धि नहीं। ये भगवान की परम सौम्य शांत मुद्रा विश्व के जीवों को ये अद्भुत रहस्य दर्शा रही। समझ में आया ना? हाँ जी। कृत्रिम जिनबिंब बोलते नहीं है, पर भगवान की मुद्रा को देखा और बयान नहीं कहते, लक्ष्य होत सम्यक दे। मुद्रा को देखा और स्वरूप की अंतर्दृष्टि हुई तो सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन होने पर कैसा अनुभव होता है कि मैं तो ज्ञान आनंद स्वरूप, ज्ञान घन स्वरूप हूँ। ये कर्म उदय व्याधि, ये सब, ये शरीर, ये मेरा स्वभाव नहीं है। नहीं। इन ज्ञान तो होता है, पर इन पदार्थों में अपनापन और मूर्छा का परिणाम नहीं होता है। नहीं। तो पदार्थ की सत्ता का ज्ञान ये दुख का कारण नहीं है।
दुख का कारण क्या है? उन पदार्थों में मूर्छा भाव। हाँ जी, हाँ, आपका वीडियो बंद हो। हाँ, वीडियो बंद हो गया। ना अभी आ गया, ना, आगे अभी आगे आ गया, वापस अभी। आ गया वापस। आ गया। हाँ, तो मूर्छा भाव ये दुख का कारण है। तो आचार्य अमृत चंद्र देव ने एक सूत्र दिया है कि ऐसे ज्ञान घन आत्मा नित्यमेव उपास्यता। ये ज्ञान घन आत्मा ही नित्य उपास्य है, उपासना योग्य है, आराध्य। क्यों है उपास्य? क्योंकि सर्व अर्थ सिद्धि आत्मतया विधत्ते। सर्व अर्थ की सिद्धि स्वभाव से ही होती है, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। क्या कर सर्व अर्थ की सिद्धि माने जन्म मरण रोग व्याधि, इस सर्व व्याधियों से मुक्ति का रहस्य क्या है? अपने अपने स्वरूप की उपासना आराधना से सारे काम सिद्ध होते हैं। मन फिजिकली मेंटली रिलीफ, शारीरिक और मानसिक सर्व व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति होती है। मन जैन शासन में टेम्परेरी ट्रीटमेंट नहीं है कि 10-20 साल आराम से बीत जाए फिर कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ आचार्य देव ने क्या रहस्य बताया कि हमारा अनंत जीवन स्वस्थ समृद्ध और संपन्न हो, ऐसा अद्भुत रहस्य बताया। एक टेक्नोलॉजी विश्व को दी है। क्या आज वर्ल्ड में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, उसमें फिजिकली और मेंटली रिलीफ नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि विश्व को जो टेक्नोलॉजी दी है वो कैसी है कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने का एक अद्भुत टेक्नोलॉजी, अद्भुत कला है, अद्भुत रहस्य है। और वो कौन सी कला है कि अपने स्वभाव में अपनापन हो। समझ में है ना? किसमें अपनापन हो? स्वभाव में, अपने स्वभाव में। हमारी एनर्जी, ऊर्जा के द्वारा कहाँ जा रही है? प्रतिक्षण बाह्य पदार्थों में जा रही है। और जा रही है मन उसमें अपनापन मान रहा है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व के व्यामोह में बार में दौड़ते जा रहे हैं, पर वहां एक क्षण भी चित्त को विराम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आनंद का अक्षय निदान अपने स्वरूप में है। और हम कहाँ भटक रहे हैं? बाह्य पदार्थों में। तो न्याय क्या है? क्या न्याय है? अपने स्वभाव में अपनापन। जो पदार्थ ज्ञान और आनंद से शून्य, जिन पदार्थों में ज्ञान और आनंद है ही नहीं, हाँ वे जी, प्रसन्नता और समृद्धि के आधार कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकता। प्रसन्नता और समृद्धि का आधार क्या है? कि अनंत में वो स्वभाव, स्वभाव में अपनापन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण उसमें डूब जाए। ये प्रसन्नता और समृद्धि का रहस्य है। समझ में है ना? बहुत अच्छी बात। तो इस तरह आगम तर्क न्याय युक्ति से अपने स्वरूप की परख हो और हमारा अनंत जीवन स्वस्थ समृद्ध संपन्न हो, इस भाव से विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय तो जिनेन्द्र। विचार ना बहुत रहस्य है, टीका में भी बहुत रहस्य आचार्य अमृत ने स्पष्ट किया है। इसका बहुत न्याय में भी बहुत इसका प्रयोग किया है। हाँ जी, लक्ष्य के द्वारा अपने स्वरूप की परख हो तो प्रसन्नता का अनुभव होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात। अपना व्याख्यान सूत्र अपने स्वभाव में अपनापन। हाँ, भाई अहम श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन चल रहा है, तो ये स्वभाव में अपनापन हो तो श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन होता है। हाँ जी, तो जी अनुभव होता है। सर।
बहुत है, इसका विचार करें चारों अनुयोगों से, तर्क न्याय न्याय से विचार करें तो उपयोग की दृढ़ता होगी, स्थिरता होगी, नहीं तो हाँ। उपयोग बहुत भटकता है। इधर उधर चला जाता है। आप अपना परिचय क्या है? बस आपका बात- नाम? आपने बहुत मतलब मैं मा, मा, महेश का छोटा, रनी का छोटा भाई महेश। अच्छा हाँ। और तो अब देखो मैं सब में सबका परिचय कर रहा हूँ तो देखो नहीं ये। नहीं, ऐसा अभी हाँ, हाँ हाँ, ये हमारी बड़ी बहन है, हिंदू बहन है। तो हाँ, आपने बहुत जय जिनेन्द्र बहुत सारा बहुत आज बहुत बहुत अच्छी बात अच्छा की। समझाया। अभी बहुत इफेक्टिव था कि अभी अपने में अपनापन करना वो हम लोग करते तो है लेकिन पुरुषार्थ कम पड़ जाता है ऐसा लगता है। अच्छा, एक हिंदू बात बहन और सब, बधाई ओळखाण कराओ। अच्छा। मेरा एक हाँ और ना प्रयोग, बराबर है। हमारा भाई साहब, मंजू बहन अच्छा, एक मिनट एक हाँ मिनट। हाँ जी, क्या पंडित जी है, बोलो। आचार्य देव की मूल भाषा से समझना चाहिए। जैसे हाँ प्राकृत भाषा है, तो जो आचार्य देव की मूल भाषा से समझने में भाव उभर के आता हाँ है, जी, हाँ वो जी। प्लेट हाँ के नहीं बराबर आता। जैसे नहीं बराबर चमोभोग लक्षणो, क्या कहा, सब्बनुणान दिट्ठो जीवो। अब इसमें जो भाव उभर के आता है वो ट्रांसलेट में नहीं आएगा। हाँ जी। तो ये हाँ बराबर आचार्य मूल भाषा से हम भाव को समझे तो वो उसमें बहुत ज्यादा रस का हमें अनुभव होगा, बहुत रस आएगा भीतर। जी जी जी। बराबर आगम तो सही बहुत बात है अच्छा है, सही बात लेकिन न्याय से अगर परख लिया जाए तो फिर हमारी बुद्धि स्थिर रहती है, फिर कहीं किसी प्रलोभन में हम भटकते नहीं। नहीं है। भटकते नहीं है। कॉन्फिडेंस पावर सॉलिड होता है, हाँ जी, और ये हाँ सबसे बड़ी विल पावर है। हाँ जी, हाँ जी। Okay. अच्छा, और तो देखो ये हमारी दूसरी बहन है, मंजुला बहन इधर। क्या? ये, हाँ जी, ये मेरी जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जी ना। हाँ, ये मेरी बहुत अच्छा। बानी है। हाँ, इनकी बेटी है ये। जय तो ये जिनेन्द्र मेरी, पंडित जी। हाँ हाँ, जी बोला वो। बहुत ये, अच्छा, ये आप लोग बहुत से नीता। एकाग्र से इतना उपयोग इसमें लगा रहे हैं, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। इस तो काल में बहुत आप आया करो क्योंकि ये आज इतनी बहुत मजा आएगा। एक दिन संस्कृत का और एक दिन आपके व्याख्यान का। हाँ, व्याख्यान कर रखे। है क्लासेस लेता हूँ, तो मेरा अच्छा टॉपिक होता है, जैसे कर्म फिलोसफी का टॉपिक है, न्याय का टॉपिक है, अच्छा अच्छा। ऐसे अलग अलग विषय होते हैं, उन पर हाँ जी, मेरी क्लासेस चलती हैं। अब बहुत अच्छी तो बात है। ये अपना रजनी टॉपिक भाई से क्या बात है? करेंगे। हाँ, ठीक है। पंडित जी, सबका ये हाँ प्रश्न है कि हाँ। भावश्रुत में कैसा जाए, भावश्रुत क्या? ज्ञान के भावश्रुत ज्ञान की प्रगटता कैसा करे। अच्छा, देखो ऐसा है, भाव श्रुति कैसे? ज्ञान, हाँ भाव श्रुति ज्ञान क्या है कि उसमें विशुद्धि बढ़ती है तो ऑटोमेटिक ज्ञान स्फुरायमान होता है। जैसे अपना शिवभूति मुनिराज का आता है, तो भाव श्रुति ज्ञान कितना था उनको, बहुत अल्प था। गुरु महाराज कोई बताते हैं भूल जाते हैं, लेकिन विशुद्धि विनय कितनी थी कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना। और तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज कोई संक्षेप में ऐसी बात बता दो कि जिसे समझ के हम अपना आत्म कल्याण कर लें। तो गुरु महाराज ने कहा कि माँ रुस माँ तुस, माने किसी से रुष्ट मती हो, किसी से द्वेष मत करो, और माँ तुस माने किसी से संतुष्ट मती हो, किसी से राग मत करो, बस इतना समझ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वो रास्ते में जा रहे हैं और एक माँ डाल से छिलके अलग कर रही है, तो संस्कृत में कहते हैं तुम क्या कर रही हो माँ? तो माँ ने कहा तुस मास भिन्नम, मास माने दाल से तुस छिलके को अलग कर रही है। बस ये घटना को देखा, एक शरीर कर्म ये सब तो छिलके हैं, और मास ये चित घन स्वरूप ये मैं हूँ। बस ये परख हो गई भाव श्रुति ज्ञान में, और अपने स्वरूप की परख हुई तो तप और साधना के बल से उसी भव में
केवल ज्ञान रिद्धि को प्राप्त कर लेते। तो विनय और विशुद्धि और उस स्वरूप में वो भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप में लगे तो वो स्वतः स्फुरायमान होता है, प्रकट होता है। ये है भाव शुद्ध ज्ञान की मन, जो अपनी पावर बाह्य पदार्थों में जा रही है वो स्वभाव में लगे तो ऑटोमेटिक ज्ञान स्फुरायमान होता है। इससे अपन आता है ना, कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद देव का पूर्व भाव में कौन थे? वो भरवाड़। हाँ बराबर बराबर। गोविंद नाम के वाला थे और शास्त्र महिमा से बहुत बहुमान आया, मुनिराज को भक्ति से प्रदान किया। तो विशुद्धि में इतना उनको पुण्य बंधा कि कौन हुए? वो महान आचार्य हुए, कुंद कुंद आचार्य हुए। समझ में आया ना? हाँ जी। और उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई। इसका मैंने प्रमाण भी दिया था। आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में 118 नंबर श्लोक में शास्त्र दाता के रूप में कौंडेस की प्रसिद्धि वर्णित की है। मन उनका प्रमाण दिया है कि विनय विशुद्धि बहुमान के भाव में वो भाव शुद्ध ज्ञान की पावर बढ़ती है। कौन से परिणाम में? विशुद्ध विनय विनय विशुद्ध बहुमान, इसमें वो भाव शुद्ध ज्ञान की पावर और अभिमान हो, गर्व हो, अहंकार हो, कषाय की तीव्रताएं हो तो वो ज्ञान की पावर घटती है। ये है भाव शुद्ध ज्ञान की पावर भी बहुत होती है। समझ में है ना? तो भाव शुद्ध ज्ञान, इस प्रश्न आपका प्रश्न था ना, भाव शुद्ध ज्ञान की पावर कैसे बढ़े? अब जैसे द्वादश के पाठी होते हैं, कैसे प्रकट करे? हैं? ज्ञान कैसे प्रकट करे? हाँ, तो वो बताया ना, विशुद्धि की पावर बढ़ाओ तो ऑटोमेटिक वो ज्ञान स्फुरायमान होता है। जैसे द्वादशांग के पाठी होते हैं तो द्वादशांग के पाठी आगम को पढ़ पढ़ के नहीं होते हैं। उनकी तप और साधना के काल में इतनी विशुद्धि की पावर बढ़ जाती है कि ऑटोमेटिक ज्ञान इतना स्फुरायमान होता है कि अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। कितने समय में? अंतर मुहूर्त में। अंतर मुहूर्त में। वो आगम को पढ़ पढ़ के नहीं होता है, वो विनय और विशुद्धि के परिणाम में ज्ञान स्वतः स्फुरायमान होता है, ज्ञान की पावर बढ़ जाती है। तो ऐसा ये भाव शुद्ध ज्ञान कब विशुद्धि की पावर में बढ़ता है? अब देखो द्वादशांग शुद्ध ज्ञान का क्या है। आज जितनी कंप्यूटर साइंस है, वर्ल्ड में जितनी टेक्नोलॉजी है, वो द्वादशांग ज्ञान के सामने तो एक तिनका भी नहीं है। अच्छा। द्वादशांग ज्ञान तो वर्ल्ड की जितनी टेक्नोलॉजी उससे बहुत अथाह है, लेकिन उतना सारा नॉलेज, परमाणु विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, इस सारा रहस्य, वास्तु विज्ञान, इस सारा द्वादशांग का नॉलेज विशुद्धि के परिणाम में कितने समय में हो जाता है? अंतर मुहूर्त में हो जाता है। तो ऐसी विशुद्धि की पावर है। पंडित टोडरमल्ली साहब ने भी एक बहुत बढ़िया बात कही है कि तुम तो तत्व ज्ञान में अपने उपयोग को लगाओ तो कर्म के उपसमाधि तो स्वयं हुए। मैंने अपनी पावर को कहाँ लगाना है? तत्व ज्ञान में। यहाँ लगाओ। बहुत विनय विशुद्धि बहुमान का भाव हो तो ऑटोमेटिक ज्ञान स्फुरायमान होता है। ये है भाव शुद्ध ज्ञान की पावर यूं बढ़ती है। और इसका बहुत मैं धबला का प्रमाण दूंगा, कभी समय मिलेगा। आचार्य देव का प्रमाण मैं निकाल के दूंगा। भाव शुद्ध ज्ञान की पावर भी बहुत है। क्या केवल ज्ञान और भाव शुद्ध ज्ञान, प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। क्या कह, बाकी पावर है। इसका मैं धबला का प्रमाण भी दूंगा। तो ये समझ में आया विषय आपको? मासी લઈ લે ને. अच्छा जी। मासी जीनवाणी લઈ ले. अच्छा अच्छा। जीनवाणी। हाँ जीनवाणी। हम पूरा करते हैं। हमारी बहन स्तुति बोलती है।
हाँ बोलो। सुन करवाणी जिनवर की मारे हर्ष हिये न समाय जी। काल अनादि की तपन बुझानी निज निधि मिली अथाह जी। सुन करवाणी जिनवर की मारे हर्ष हिये न समाय जी। संशय भ्रम और विपर्य नाशा। संशय भ्रम और विपर्य नाशा। सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सुन करवाणी जिनवर की मारे हर्ष हिये न समाय जी। नर भव सफल भयो अब मेरो। नर भव सफल भयो अब मेरो। बुद्ध जन भेटत पाय जी। सुन करवाणी जिनवर की मारे हर्ष हिये न समाय जी। निज निधि निज में बताई यहाँ अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी मात को वंदना सत बार है। वंदना सत बार है। नित्य बोधिनी जिनवाणी मातनो जय માતનો જય હો. પરમ ઉપકારી આપના સૌના વાલા શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. જય હો. સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. ધર્મનો જય जय हो। હો. જય. पंडित जी पूरा करते हैं। હા. જય જિનેન્દ્ર પંડિતજી. जय चिन्ह। जय जिनेन्द्र। જય જીનેન્દ્ર રાજેન્દ્ર. ચાલો બંધ કરું છું। हाँ હા 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 इंदुबेन, जय जिनेन्द्र।